bestowing this important responsibility on her as well. Can we have a round of clap for them, please? Please. Come. Be dear to your heart. Thank you, first of all, and for the honor. And I'm very glad because it's for the first experience. I've never seen something so beautiful before. Thank you. I think it's different for me. And I'm surely going to take the responsibility of doing my, whatever you'll have chosen me for the right cause. I will give my 100% to the foundation and will work towards it at every step. It's not only related to whatever we do, but also maybe bring in some kind of innovation to the cause where we can all participate together and as a big family together. Yes. And I'm very thankful to Vashuji for being here. And he's been such a great inspiration to me as one of the most respectable producer. He was somebody I always looked upon initially because before becoming a producer, let me be very honest about him because he's here, so I have to take the privilege to speak about him. So when I wanted to be a producer, I used to watch all his films. And I've always, with his films, smiled. Yes. So I think there'll be nobody... He's actually a brand ambassador already. Absolutely. So his films always spoke about positivity, about happiness, colors. There was not a single film where I thought it was dark or gloomy because I think as a man, he's a man with a lot of positivity, a lot of enthusiasm. He's so childlike, he's so young, and the way he works, as well as Kriyaj and Arjun, we all are going to be participating with Vashuji and his company to do a lot of business together. So is any announcement happening collaboration here? No, we'll be announcing the collaboration on the 20th of December in a very big way. And that's something is going to be the next step with him. We all are looking forward to it. Vasuji, from you, you have seen Smile, you have seen these children grow up and probably many more of them. Jackie has been a brilliant supporter to Smile as well. So is Deepshika. So, you know, there have been your family who has supported us. How is it to come back here? Really very good, you know. बच्चों के साथ तो always it's fun. Yes. And now तो I have 2 grandchildren, you know. Yes. I love them because प्यार क्या था कुछ साल पहले सिर्फ काम में busy रहते थे. We used to see children, we used to think अरे क्या अच्छा मजा है. But now तो every day at home, you know, I play with them. I go to office almost at 2 o'clock, 3 o'clock. जब तक वो सोते नहीं मैं निकलता नहीं हूँ. It's a fun. I know, certainly, certainly. And Vasuji has associated his films with Smile. Faltu has been associated with us. Many other films have been a part of it. Thank you so much, sir. Over the years, you have been with Smile. Thank you so much for that. Arjun, so for you, I would like you to introduce Prerna to us. Because you have seen her up close and personal, no one better than you. Well, firstly, I think it's a great initiative, Smile Foundation in itself. I have to admit, I wouldn't know how far and wide y'all go, but I do know that y'all are doing a great job. And what better than supporting kids, because they are the future. And we all look forward to seeing them become and realize their potential. So y'all are helping do that. So congratulations to y'all, and we really, really appreciate that. With regards to Prerna, you know, the people who don't know her, probably she seems like a demure, kind-hearted person, which she is. But that being said, I thought you'll say she's not. Well, no, she clearly is. But that being said, she's an extremely ambitious and righteous and hardworking lady. I think you introduced her as someone who's made it big in the man's world. Yes. You know, Vashuji is a great example. I mean, you know, he is one of the top producers of the country. And actually, it's not only film production. He does many more businesses, and he's very, very successful at it. So we're inspired. But, you know, when you see a young lady like her, who's doing what she's doing right now, and with the aggression and the right intent, so it's a great inspiration for kids like her. So I think she's a very appropriate ambassador to have, along with, of course, gentlemen like Mr. Bhagnani. But she's a very appropriate ambassador for the kids to get inspired, and boys and girls alike. Exactly. It does not mean that only the girls will get inspired. Even the boys will get inspired that, you know, someone who's come from a small town like Dehradun from up north, and look at what she's done. I mean, she's creating waves, and I'm riding those waves, actually. Easy for me. Thank you so much. One word I'll tell you. It took me 22 years to make 30 movies. Oh. And she's going to do, in 3 years, 30 movies. Wow, that's where women are, sir. Correct. You know, they are multitasking and super aggressive. Yes. Yeah, and the easy part for Arjun is I just have to be with her, and that's it. Perfect. So 10 are going to be with you. So
Yeah, pretty much. Perfect. I think, this is why I think, I would like to put and reiterate the fact why Smile decided that, we should invite her on board with us, because we somewhere looked upon and we never found any woman to be that aggressive as far as production in films is concerned. We see actresses, we might see some technicians, but someone producing it and taking up that risk the way she is announcing it. Which I like to just conclude the conversation, and I'm sitting here with the privilege. I want to say it openly again. I say it all the time. I'm indebted and I am thankful only and only to Akshay Kumar for making me who I am today. It was him who inspired me to take up such subjects for the country, for the nation, which is more relevant, which is more today. And it's because of him who I am, because the learning, like you said, the education came from him. I was not that educated at all. I was in my world thinking, picture banana hai, commercial film banana hai, fun banana hai, वो भी बनाना है. But at the same time, जो contribute उन्होंने किया है ऐसी films को खड़ा किया है, टॉयलेट जैसी समस्या को, जो कि वो उनका खुद का statement था कि कोई film को हाथ नहीं लगा रहा था. काफ़ी एक्टर्स ने मना कर दिया था. वो अक्षय सर थे जिन्होंने स्क्रिप्ट पे बिलीव किया. उनके साथ हमने उन पे बिलीव किया था, जो कि डे 1 रुस्तम के टाइम से था. तो बीट नानावती केस, बीट टॉयलेट एक प्रेम का था, बीट पैडमैन विथ ट्विंकल जी, दैट्स अ ह्यूज लीप towards revelation for the country. And it's about education again. Toilet in a way educated a lot of people. Padman will educate a lot of people, and hopefully many more. But for me, everything is because of him, in simple words. That's very nice, and I'm sure there will be many things because of you for these little girls that they will take home back. I will do my best. Yeah. So can we have the certificate handover, and then we'll have the cake cutting, please? We can have some kids joining us on stage. Yeah, get that. Get the bouquet on. Come.
कम हंसती हूँ ज़िंदगी में, बट अब लगता है हंसना पड़ेगा बिकॉज हंसने का नाम ज़िंदगी है कहते हैं. बट विद दिस ब्यूटीफुल चिल्ड्रन अराउंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है. और आज जिस मुकाम पे मैं हूँ और जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कुछ कर सकूँ, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस के साथ निभाऊँगी. तो ये मेरा एश्योरेंस है सब बच्चों के टूवर्ड्स, स्माइल फाउंडेशन के टूवर्ड्स, एंड थैंक यू, वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये थॉट कहाँ से आया, थॉट को थोड़ा बताएंगे कि इस बारे में ब्रांड एम्बेसडर बनना नहीं, है, मुझे इन्होंने इनवाइट किया था एंड मनीषा जो है इनकी हेड, उन्होंने हमें इनवाइट किया एंड दे चोज अस टू लुक इनटू एंड बिकमिंग द एम्बेसडर फॉर देयर, एंड आई ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड विद हैप्पीनेस. मैम देखा जाए तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए. पहली बात तो एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर जहाँ पे भी हम इनको सपोर्ट कर सकेंगे सारे बच्चों को, बिकॉज आज आप देख रहे हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है और एजुकेशन की वजह से बहुत लोग पीछे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ के इतने टैलेंट है, इतना ब्रेन है, इतना सब कुछ हमारे पास है, बट कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है बिकॉज यहाँ पे एक दूसरे को समझने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है. कंपैशन की थोड़ी सी कमी है मुझे लगता है लोगों में, और सब अपने आप को लेके खुद सब परेशान है अपनी ज़िंदगियों में, अपने करियर्स में. हम लोग सब एक रेस में भाग रहे हैं, उसमें हमें किसी के लिए सोचने का टाइम नहीं है बिकॉज अपने आप को ही संभालना पड़ता है. बट आई थिंक जब आप इस पोजीशन पर आ जाते हैं या अगर आपको एक चांस मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है. ऑफकोर्स मैं जितनी अच्छी बनाऊंगी, जितना मैं आगे बढ़ूंगी, उतना मुझे वो पावर मिलेगी मेहनत करके, तो मैं उस वजह से कर पाऊँगी. तो आज जहाँ पे मैं एक कदम आगे बढ़ी हूँ, तो मैंने आज ये अपॉर्चुनिटी स्वीकार किया है और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूँगी और हर पार्ट पे इन लोगों का मैं साथ निभाऊँगी. बिल्कुल उठाना चाहूँगी. मैंने ऐसे ही बोला आपको, ये पहला कदम है मेरा भी अपने करियर में. मैं बिल्कुल नहीं हूँ और अभी स्टार्ट किया सब कुछ, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी मैं इस चीज़ को डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेना चाहती हूँ. और ये चाइल्ड अब्यूज़ की आप बात करें, हरासमेंट की, एजुकेशन की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत समस्याएँ, एक नहीं है, बहुत हैं, और बच्चों से लेके पेरेंट्स को भी अफेक्ट पड़ता है. मैं ये भी मानती हूँ. स्माइल फाउंडेशन में अगर कुछ ऐड करना हो आपको, देखा जाए तो या ऑलरेडी वेल नोन चैरिटेबल ट्रस्ट है देखा जाए तो क्या उसमें क्या क्या ऐड्स होंगे अगर आपके हिसाब से कुछ करना हो तो? अभी देखिए, जहाँ तक एजुकेशन और फाइनेंस की बात हो, जितना मैं सपोर्ट कर पाऊँगी मैं करूँगी सब बच्चों को. उसके आगे जॉब्स के लिए जैसे अगर आप जुड़े रहते हैं किसी भी संस्था के साथ, आप कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके पेरेंट्स भी चाहें कुछ चाहते हैं इनके लिए, तो हम वो चीज़ को डेफिनेटली उसको मैं आई लुक इन टू इट, एंड उसके लिए हम जो भी प्रबंध कर पाएंगे करेंगे. फॉर एनी बडीज़ मे बी करियर अपॉर्चुनिटीज़ विल कम अहेड. मे बी किसी को कुछ सिंगर बनना है, किसी में कोई टैलेंट है, अगर वो टैलेंट दिख जाता है किसी भी बच्चों में, तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेदारी हमारे पास होगी. ओके, जैसे कि आज बच्चों से आपने इंटरेक्ट किया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, ऑल आर वेरी वेरी स्वीट. मैंने वही पूछा, सब पहली बार तो बॉम्बे से है. मैं ये सोच रही हूँ कि दुनिया में कितने बच्चे हैं और कितने लोगों को वी हैव टू रीच आउट टू देम. और मुंबई के अलावा भी जैसे रूरल एरिया में जैसे कि हम देखा जाता है कि वहाँ पे ये सब फैसिलिटी होती ही नहीं है कि मतलब जल्दी शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी मैं आगे बढ़ती जाऊँगी. एक पहला कदम है, जैसा मैंने आपको फिर से कहा है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी मैं उस चीज़ को डेफिनेटली पहुँचूँगी, उसके जड़ तक पहुँचने की कोशिश करूँगी. जहाँ तक भी मेरी हैसियत होगी, जहाँ तक भी मेरी पोजीशनिंग होगी, मैं वहाँ तक पहुँच के जितने लोगों को कर पाऊँगी, आई विल ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ देम. सिर्फ गर्ल्स है, बॉयज़ नहीं है, तो सिर्फ गर्ल्स को सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बॉयज़ को भी सपोर्ट करना चाहती हूँ कि स्माइल फाउंडेशन का उनका अपना वो है, बट नहीं, सबको. मैंने ऐसे बोला, पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज, और मेरी सबसे बड़ा मुझे दुख होता है जब मैं पेपर्स में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है. आई एम इमोशनल पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है बिकॉज आई एम वेरी अटैच्ड टू माई पेरेंट्स. मैं सबके किसी के भी पेरेंट्स को देखती हूँ, मुझे लगता है सब मेरे ही पेरेंट्स हैं. तो मैं स्पेशली ओल्ड एज के लिए, उन लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जहाँ पे भी जो भी प्रोवाइड कर पाऊँगी मैं करना चाहती हूँ. ओके, जैसे कि आप सबसे यंग प्रोड्यूसर है और आपके अक्षय कुमार के साथ से आपने स्टार्टिंग की थी और अभी धीरे धीरे आपकी आने वाली फिल्म आ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको इतने अच्छे अभी तो पैडमैन आ रही है जिसमें सब बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एजुकेशन होगा, जो अक्षय सर के माध्यम से हम सबको इनको भी पिक्चर दिखाएंगे और आप सब देखेंगे पिक्चर, आप समझेंगे उसमें बहुत बड़ा कदम उठाया अक्षय कुमार ने और ट्विंकल खन्ना मैम ने अपने आप को साबित किया अक्षय सर ने एक अलग लेवल पे. क्योंकि जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया आज की डेट में, वो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और रेवोल्यूशन है. सो आप पहले तो वो फिल्म देखेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो एक लीप करेगा, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा. जैसे कि हम मान सकते हैं कि आगे वाले टाइम में आपको ऐसा सोशल मैसेज जैसे और मूवीज़ बनाएं? मैं सोशल मैसेजेस की ही फिल्म बनाना चाहती हूँ. मैं बहुत क्लियर हूँ. आई वांट टू हैव क्रियाज एज अ पायनियर ऑफ a film company which will make national films, which will make social films, real films, and as much as I can bring out new topics, but which will contribute to the society or to the country. I'm very clear. I want to. This is my route. मैम अभी आप प्रोजेक्ट
की बात करें तो कुछ आप क्लियर करना चाहेंगे और कुछ बोलना चाहेंगे अबाउट स्क्रिप्ट एंड जिससे आपने बोला कि कोई मूवी को करने के लिए रेडी नहीं जी, उसके अबाउट कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि जब फिल्म स्क्रिप्ट पे थी और जब अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उससे पहले भी फिल्म बनाने की कोशिश हो रही थी काफ़ी सालों से। ये अक्षय सर के खुद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात को उठाया था कि कोई भी, सब सोच रहे थे नहीं ये बहुत कॉमर्शियल फिल्म नहीं है, कैसे पता नहीं चलेंगी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ था। बिकॉज कई बार ऐसी फिल्म को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता है, बट हमें पूरी उम्मीद थी और 100% मुझे तो बहुत बड़ा, आई वॉज वेरी वेरी क्लियर डे वन कि ये फिल्म बहुत बड़ा नाम करेगी। बिल्कुल, तभी जब हमारे साथ ये बात हुई, आफ्टर उस समय बात हुई हमारे और अक्षय सर के बीच में, इमीडिएटली डिसीजन हो चुका था कि रियाज इसके साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, और वही हुआ क्योंकि वो बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आज भी सबके लिए बोलना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो भी ये देख रहे हैं, कि डिटर्मिनेशन और एक सेल्फ बिलीफ और विल पावर सबसे बड़ी चीज़ है। इन फ्यूचर अगर प्रमोशन हुए, इन फ्यूचर प्रमोशंस में इस मूवी के जो रियल स्टोरी पे डिपेंड है, तो उस बंदे को आप देख सकते हैं? बिल्कुल अक्षय सर के साथ मौजूद होंगे मोस्टली सब प्लेटफॉर्म पे। लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप प्रोड्यूसर, आपके लिए फिल्म बहुत मायने रखती है, जैसे कि आप जानते हैं कि पद्मावती को रिलीज़ होने नहीं दे रहे सब लोग, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? ये पद्मावती के बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, बट मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि जो भी जस्टिस हो, जो भी सही बोल रहा हो और सच बोल रहा है, वो सच जीते, सच्चाई जीतनी चाहिए। थैंक यू। फाउंडेशन है जो नया खोली, उसके बारे में हिस्सा बने। स्माइल फाउंडेशन को मैं ऑलमोस्ट, मुझे तो 15 साल से तो कम से कम जानता हूँ। बहुत जेन्यून, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी टीम है। मैं अभी वही डिस्कस करता भी कितने बच्चे हो गए इसमें, तो बेनिफिशियरी तो शायद 6-7 लाख हैं और 24-25 हज़ार बच्चे आज वही कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये मोटिवेशन होता है क्योंकि फाइनली यही फ्यूचर है। आप भी बड़े हो गए, मैं तो खैर बहुत बड़ा हो गया उम्र में, बट क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा यंग लड़की है और बहुत अच्छी डैशिंग है। मैंने जैसे कहा आपसे कि मैंने लास्ट 22 साल में 30 पिक्चरें बनाई है और ये इस तेज़ी से चल रही है कि ये 3 साल में 30 पिक्चरें बनाएगी, विच इज़ वेरी गुड। तो ऐसे ही बच्चे चाहिए, दे लाइक चिल्ड्रन, गुड मोटिवेशन भी है और चैलेंज भी है एंड कर भी रहे हैं। इट्स नॉट मी सेइंग, शी इज़ डन इट। सर जैसा कि आपने बताया, आप पिछले 15 साल से इस स्माइल फाउंडेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अगले कदम क्या होंगे? देखिए, आपको सच्ची बताऊँ कि मैं ये सब चीज़ें इसमें बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि वो पर्सनल मैटर है मेरा और स्माइल का, लेकिन मेरे बच्चे भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है, जैकी भगवानी और दीपशिका देशमुख। जो भी काम इनके लिए एक्चुअली जितना करो उतना कम है, पब्लिक को बोल के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, वेस्ट। ओके, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बहुत सारे फाउंडेशन देखने मिलते हैं, लेकिन इंडिया वही का वही रहता है, थोड़ा सा भी इसमें चेंजेस नहीं आता। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से रियलिटी में चेंजेस? देखिए, हम लोगों में चेंज आना चाहिए, इनमें तो चेंज आ नहीं सकता है, तो बच्चे हैं, प्लस इनका फाउंडेशन है, इनका डेली का ये स्कूल की तरह काम हो रहा है। हम लोगों में चेंज आना चाहिए, हमको नई नई चीज़ देखनी चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ हो जो इनके लिए कुछ सोचें या बच्चों के लिए कुछ सोचें। हम लोग कोई बच्चे के लिए नहीं सोचते ना, आप और मैं, ये सब हम लोग सोच रहे हैं मीडिया में कैसा आ जाए, TRP मिल जाए, मुझे मेरा फ़ोन, ज़रूरत ही नहीं मुझे, नो नीड। बच्चों के लिए क्या करता है, तो सबसे पहले बच्चों के लिए मैं खुद अभी, वैसे देखिए मैं 57 का हूँ, मैं 3-4 साल तक मुझे समझ में आता बच्चों के लिए ऐसा क्या होता है। मैं चाहता था ठीक है, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, मुझे अब लगता है बच्चे कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही फ्यूचर है। क्योंकि हमने कभी बचपना देखा नहीं, और जब बच्चे बड़े हुए तो उस टाइम काम में इतना बिजी थे कि वो नहीं देखा। अब लग रहा है कि इनके लिए जेन्युइनली जितना करे उतना कम है। माना मुझे कोई बोले 10 दिन ऑफिस बंद करो, इन बच्चों के लिए कुछ करो, आज मैं कर सकता हूँ, उस टाइम नहीं। आप भी मत करिएगा ना, आप कर पाएंगे। इट इज़ एज, यू नो, मैंने एक एज आ जाती है, आदमी को लगता है ना, यू शुड डू इट, जेन्युइनली यू शुड डू इट जितना हो सकता है। और मेनली क्या है, देखिए मैं स्माइल फाउंडेशन से नहीं हूँ, अगर रूरल में इनको कुछ कहेंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बात रूरल एरिया और नॉर्दर्न एरिया नहीं है, इट इज़ बच्चे। आप किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, बड़े से बड़े शहर में जाइए, बच्चा शार्प निकलना है तो वहीं से निकलता है। अब मोदी जी का तो ना पता था कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चाय बेचने वाले आदमी थे। ओके सर, या किसी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं एज पर न्यूज़। सर क्या कुछ इसके पीछे रीज़न क्या है सर, मूवी की क्या रीज़न मैं आज तक समझ नहीं पाया क्योंकि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे काम करता है, मैं एक्चुअली आज तक पकड़ नहीं पाया। मेरा तो वज़न देख ही रहे हैं, तो मेरा डबल डाइट, उसका हाफ माइनस डाइट है। थैंक यू सो मच। सो मच सर।